दिस लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड, ताकि आपको कोई चीज़ दोबारा चेक करनी है, यू कैन चेक दैट लेटर ऑन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दे आर टू थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड कि जो आज की वर्कशॉप है, इट इज़ फोकसिंग ऑन यूजिंग स्मार्ट PLS टू यूज SEM, which is structural equation modeling, या path analysis. There is some minor difference between SEM and path analysis. वो हम अभी discuss नहीं कर रहे. The basic goal of the workshop is to understand how to run these techniques using Smart PLS. Uh, the purpose of this workshop is to work on Smart PLS. हम Smart PLS की बात इसलिए कर रहे हैं. There are other softwares जिसके अंदर आप SEM लगा सकते हैं. One example is Amos. The reason we recommend Smart PLS over Amos is कि Smart PLS is more robust. Robust से मुराद ये है कि इनिशियल डेटा के assumptions होते हैं. अगर डेटा का सैंपल कम हो, उसकी नॉर्मेलिटी ना हो, या देयर सम अदर क्राइटेरिया विच आर मिसिंग, अमोस आपको बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. ऑन द अदर हैंड, स्मार्ट PLS इज वेरी रोबस्ट. वो उन चीज़ों को भी हैंडल कर लेता है. Interface wise, robust wise, and keeping a lot of interfaces in mind, Smart PLS is a much simpler and easier to use software. The most important thing here is, which I normally tell all of my students, is कि do not assume that the software will make you a good researcher. It is important to understand this. MS Word आपको author नहीं बनाता. It is a tool which helps you to write and to format your reports. लिखने का कंटेंट क्वालिटी आपके ऊपर होती है. इसी तरह ये सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग PLS, दिस इज टू फैसिलिटेट यू. आपके पास अगर टेक्निक्स की या कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज नहीं होगी, इट इज़ यूजलेस. तो गार्बेज इन गार्बेज आउट कॉन्सेप्ट होता है. आप कचरा दोगे, सॉफ्टवेयर आपको कचरा निकाल के दे देगा. यू विल अज्यूम इट इज़ वेरी गुड. सो वी विल स्टार्ट नाउ. स्मार्ट PLS का जो स्टूडेंट वर्जन, इट इज़ फ्री. आप यू कैन सिंपली गो टू गूगल, राइट स्मार्ट PLS 3, and you will get a link. आराम से आप इस पे डाउनलोड करो and you can start with the simple free student license. किसी बंदी का आई थिंक माइक ऑन हुआ है, तो मेरी आवाज रिपीट हो रही है उसके पास. किसी को कुछ पूछना पूछ सकते हैं, बट ट्राई कीजिएगा माइक प्लीज म्यूट रखिएगा. ओके, तो once you downloaded, I think 150 MB की फाइल है, you can install it and you will be asked to select a license. Go for the student license. The good thing about the student license is you can run all the analysis which are available. The bad thing is कि you cannot जी फरजीन, आप कुछ कह रही हैं? आपने हैंड रेस किया है. Farzeen Aslam has raised her hand. Do you have a question? आई एम अज्यूमिंग गलती से हुआ इससे. अच्छा, स्टूडेंट लाइसेंस का नुकसान ये होता है कि यू कैन ओनली रन द एनालिसिस ऑन 100 सैंपल. 100 से ज़्यादा सैंपल पर रन नहीं हो सकता. एंड सेकेंडली, यू कैन नॉट एक्सपोर्ट योर आउटपुट, या यू कैन नॉट एक्सपोर्ट योर टेबल्स. So यहाँ पे थोड़ा इंटरफेस इंक्रीज हो जाता है. तो वी विल हैव टू फिजिकली मेक द टेबल्स, वी विल हैव टू रीराइट द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट. And if you have a larger sample size, then we will have to go for a registered version, जिसका मैं आपको solution अभी recommend करूंगा by the end of this workshop. Once you have collected your data, please keep in mind कि data collection से पहले अपने questionnaires जब बनाओगे, get it verified by your supervisor. अक्सर questionnaires होते हैं, उनमें कोई गलतियां होती हैं, बच्चे पहले collect कर लेते हैं. तो the data which you have is not fit for certain analysis. So once your supervisor has reviewed your questionnaire and they have approved it, या with their approval you have coordinated with the relevant people, जब वो review करके आपको okay कर देंगे, फिर data collect कीजिएगा ताकि आपके पास relevant information आए. क्योंकि your techniques dictate the kind of questions your questionnaire should have. Once you have collected your data, आपके पास जो data आएगा, it will be on Excel sheet which is done through data tabulation. अब मैं स्क्रीन शेयर करके आपको एक दो चीजें दिखाता हूँ जरा प्लीज. अच्छा, डेटा टैबुलेशन आई एम अज्यूमिंग आप सबको पता है क्या होता है. अगर नहीं पता तो फील फ्री टू आस्क. इट इज सिंपली कि आपका जब डेटा आ गया, उसको आपने एक्सेल में ट्रांसफर कर देते हो फॉर फर्दर एनालिसिस.
एक्सेल शीट सबको नजर आ रही है? नहीं, अभी विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं है अभी तक? नहीं। ओके मैम, एक सेकेंड। अब प्लीज चेक कीजिएगा, अगर नजर आए तो बताइएगा मुझे। जी सर, आ रही है, ठीक है। परफेक्ट मैम। Okay, this is what we call data tabulation, कि आपने जब अपने डेटा को क्वेश्चनर से निकाल के एक्सेल के अंदर पेस्ट कर दिए। दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव नॉर्मली सीन स्टूडेंट्स तकरीबन सबने किया हुआ होता है। एक स्टेप तो ये होता है कि वंस वी हैव कॉपीड द डेटा इनटू अवर एक्सेल, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप ये होता है वी कन्वर्ट दिस इंफॉर्मेशन इनटू क्वांटिटेटिव फिगर्स। अब क्वांटिटेटिव फिगर से मुराद ये है, लेट्स से हमारे पास एक लिकर्ट स्केल है 1 to 5, 1 is strongly disagree, 5 is strongly agree। तो हम 1 को जो strongly disagree है उसको हम चेंज करेंगे इनटू 1। जहां जहां strongly disagree लिखा होगा हम उसको 1 करेंगे, जहां disagree लिखे उसको हम 2 करेंगे, not sure लिखे उसको 3 करेंगे, जहां agree लिखे 4 करेंगे, जहां strongly agree लिखे 5 करेंगे उसको। No yes को भी हम न्यूमेरिकल कोडिंग करेंगे, no is let's say 1, yes is 2 और वाइस वर्सा। तो when all of this information is converted into numbers, तो आपके पास इस तरह कुछ आ रहा होगा। तो your entire Excel sheet should be something like this, with the exception of the first row। इस रो में आपका क्वेश्चन होगा, या आई वुड से वेरिएबल नंबर या आइटम नंबर का थोड़ा सा आपने कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एम्बिगुअस इंफॉर्मेशन, जो इस टाइप की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है जो आप यूज नहीं करोगे एनालिसिस में फॉर द पर्पस ऑफ एसईएम, उसको आप उस फाइल में से डिलीट कर देना, ताकि एम्बिगुअस इंफॉर्मेशन ना हो, क्यों पीएलएस सारी इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लेता है। सेकेंडली, make sure that the first row of the Excel sheet has all items which are unique। यूनिक से मुराद ये है, पहला आपका जो क्वेश्चन 1 है तो आप Q1 लिखोगे, Q2, Q3, Q4, Q5, समथिंग लाइक दिस। रेपिटेशन ना हो, रिडंडेंसी ना हो। अगर रिडंडेंसी आएगी तो पीएलएस उसको पिक नहीं करेगा। Once you have converted the sheet into numerical form with the unique first row, we will save this at .cv file। जो फाइल सेव होगी वो .csv फॉर्मेट में सेव होगी। हम फाइल पे आएंगे, we will go to save as, और हम फॉर्मेट में csv कॉमा डिलिमिटेड, इस फॉर्मेट में हमने इसको सेव करना है। दिस इज द फॉर्मेट विच विल बी एक्सेप्टेबल बाय पीएलएस। जब आप इस फॉर्मेट में सेव कर लेंगे तो यूजुअली इसकी जो शक्ल है काफी चेंज हो जाती है। इट्स नॉट वेरी इजी। देखें, ह्यूमन इंटरप्रिटेशन के लिए फाइल काम की नहीं रहेगी। तो वंस, जी बोले सर। जो हमारा फर्स्ट कॉलम था जिसमें डेट वगैरह थी, उसका आपने क्या बताया था? देखो, जो यूजलेस इंफॉर्मेशन है उसको आप हटा दोगे, सीरियल नंबर, डेट्स, अगर कोई ऐसी चीज है, अनलेस एंड अनटिल यू आर गोइंग फॉर टाइम सीरीज एनालिसिस, तो एम्बिगुअस चीजों को हटा दोगे। ओके सर। ओनली हैव इंफॉर्मेशन व्हिच हैज टू डू विद योर आइटम्स या क्वेश्चंस। अच्छा, वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड इज कि यू कैन यूज टाइम सीरीज डेटा इन स्मार्ट पीएलएस, बट there are a lot of different checks for that, there are a lot of different requirements for that। तो इस वर्कशॉप में हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे। द टेक्निक्स वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ आर टारगेटेड टुवर्ड्स स्पेसिफिकली क्रॉस सेक्शनल डेटा, जो हमारे पास क्वेश्चनर से लिया जाएगा, इग्नोरिंग प्री एंड पोस्ट टेस्टिंग। तो सिर्फ क्रॉस सेक्शनल डेटा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। आई एम अज्यूमिंग ये चीजें आपको पता है ना, किसी को ना पता हो, किसी को कंफ्यूजन हो, फील फ्री टू आस्क मी। जो मैं पहले पर्पस बता चुका हूँ, पर्पस इज सिंपली टू यूज स्मार्ट पीएलएस। if we have further questions, we can have further classes or sessions अगर आप या आपकी टीचर कोऑर्डिनेट करें। Once we have installed the software, the interface for the software will be something like this। सॉफ्टवेयर शो हो रहा है आपको? यस सर। Perfect। इसका इंटरफेस इज रिलेटिवली वेरी सिंपल। SPSS है, अमोस है, R है, eViews है, and MATLAB है। They have
complicated interfaces. TLS का interface बहुत आसान है, but the techniques which are being used, they require complex knowledge. So because we are starting our new project, top left पे project का icon आ रहा होगा, we will click this और हम project का नाम कर लेंगे PLS workshop basic. अच्छा, just to give you some idea, PLS stands for partial least square. तो जो हमारी ये स्मार्ट PLS की जो सॉफ्टवेयर है, इसकी जो पूरी वर्किंग है, इट फॉलोज द स्टैटिस्टिकल फॉर्मुलेशन ऑफ पार्शियल लीस्ट स्क्वायर. ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है. तो एवरीथिंग व्हिच वी डू इन स्मार्ट PLS इज बेस्ड ऑन द PLS मेथड. अब मैंने न्यू वर्कशॉप का प्रोजेक्ट बना दिया है. Everything we do will be saved under this heading in the top left area. अब मुझे डेटा इंपोर्ट करना है, इसके ऊपर आप देखो डबल क्लिक टू इंपोर्ट डेटा का ऑप्शन है. आप डबल क्लिक है और मैंने जो भी फाइल आपको दिखाई थी .csv करके सेव करनी थी, मैंने पहले से सेव की हुई है. इट इज हियर. अब ये को मैंने 99 किया हुआ है बिकॉज द सॉफ्टवेयर आई एम यूजिंग राइट नाउ इज अ स्टूडेंट वर्जन. तो आई कैन नॉट इंपोर्ट डेटा of more than 100 respondents इसके अंदर. तो I have a data file जिसमें मैंने 100 respondents लिए हुए. अभी I will be buying the software. अब हमने यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की थी, अप्रूवल तो हुआ था, बट क्योंकि कोरोना आ गया था इसकी वजह से इससे फर्दर काम नहीं हुआ है. अगर यूनिवर्सिटी अलाउ करेगी तो we will go through with the software with them. वरना मैं पर्सनली इसका लाइसेंस खरीद रहा हूं. इट इज फॉर €200 या €250 पर ईयर. तो जिसका सैंपल साइज बड़ा होगा तो यू कैन वर्क विद मी ऑन दैट. तब आप यू कैन यूज माय लैपटॉप. ओके, आई सिंपली सेलेक्ट दिस. सैंपल साइज बड़ा है. हाँ, तो मसला ये फिर आपको लाइसेंस वर्जन यूज करना पड़ेगा. लाइसेंस वर्जन इज €250 या €200 इसका. तो अगर यूनिवर्सिटी ने अप्रूवल मिल गया था, अगर वो करेंगे तो वी कैन हैव वन कंप्यूटर इन द यूनिवर्सिटी. वरना मैं पर्सनली इसका लाइसेंस ले रहा हूँ तो फिर आई कैन रन द एनालिसिस फॉर यू अगर आपको सैंपल बड़ा होगा तो. ओके सर, थैंक यू. नमस्कार. ओके, कॉर्पोरेट रेपुटेशन पे मैंने ओके कर दिया. ये नाम पूछ रहा है तो मैंने वही दोबारा मैं डाल दूंगा, PLS वर्कशॉप. अब इसने सारे आइटम्स इंपोर्ट कर लिए. जो फर्स्ट रो थी जिसके अंदर सारे हेडिंग्स मैं आपको कह रहा था, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए. अगर आपने Q1 किया होता, यहाँ पे Q1 होता, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड स्टफ लाइक दैट. तो इसका बेसिक प्रिलिमिनरी एनालिसिस हो गया. यहाँ पर मीन मिल रहा है, मीडियन मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, स्टैंडर्ड डिविएशन, एक्सेस, कुर्टोसिस, क्यूनेस, ऑल द बेसिक स्टैटिस्टिक्स व्हिच यू मे नीड. नाउ अब हमारा काम स्टार्ट हो रहा है यहाँ से. अच्छा, जस्ट कीप इन माइंड कि व्हाटएवर यू सेव हियर, इसकी अलग से आउटपुट फाइल सेव नहीं होती लाइक SPSS या समथिंग लाइक दैट. इसका आर्काइव फोल्डर होता है, C के सॉफ्टवेयर के अंदर जो पड़ा होता है वहां पे ऑटोमेटिकली सेव करते हैं. Whatever you save will be showed here on the left side. मेरा ये पूरा एरिया खाली इसलिए हुआ है क्योंकि I formatted my laptop. यहाँ पे सारी डिटेल्स नहीं है. You cannot save an output file इसके अंदर अलग से, इसी में सारी सेव होंगी. ओके, नाउ अब हमने बनाना है पाथ मॉडल. पाथ मॉडल पे टॉप लेफ्ट पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है न्यू पाथ मॉडल का, बट हमने नीचे प्रोजेक्ट बनाया हुआ है. तो जब हम डेटा कॉपी करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसकी वर्कशॉप या वर्कबुक खुल जाएगी. तो आई डबल क्लिक ऑन दिस, मेरे पास एक ब्लैंक कैनवस खुल जाएगा कि आई कैन प्ले हियर, आई कैन मेक या क्रिएट द मॉडल्स. अच्छा, ऊपर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पाथ मॉडल. पाथ मॉडल इज समथिंग, हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाते हैं ना, इट इज समथिंग लाइक दैट. बट पाथ मॉडल में और स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग में कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस होते हैं. उसमें there's a difference between latency. Again, हम अभी उस डिटेल में नहीं जाएंगे, but you need to understand there's a difference between the path model and the structural equation modeling. Whatever we are supposed to do will be done here. तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, we will start with the construction of our variables. तो मैं latent variable पे क्लिक कर रहा हूँ. It is important to understand कि यहाँ पे independent variable और dependent variable का ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ पे latent variable आ रहा है. And it is very important to understand this. This is one major difference between other techniques and SEM.
कि यहाँ पे हम लोग लेटेंसी पे खेल रहे हैं. लेटेंसी मीन्स के देयर कैन बी सम हिडन वेरिएबल्स, देयर कैन बी सम आइटम्स विच माइट बी हिडन. हम समझ रहे होंगे कि ये आइटम्स मीनिंगफुल नहीं है या ये किसी खास वेरिएबल से रिलेट कर रहे हैं, बट इन रियलिटी इट माइट नॉट बी द केस. तो लेटेंसी मीन्स अननोन फैक्ट्स या अननोन इंफॉर्मेशन या अननोन रिलेशनशिप. तो हम अपनी तरफ से कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे, मगर एससीएम खुद फिर चेक करेगा कोई हिडन रिलेशनशिप आ रही है या हिडन आइटम्स हैं, तो वो उनकी भी मीनिंग्स देखेगा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एससीएम एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी यूजफुल, जो दूसरी टेक्निक्स में नहीं होता. Once I click the latent variable, now I can create my independent and dependent variable from my concepts. फिर ये मेरा सॉफ्टवेयर बताएगा मुझे कि हिडन वेरिएबल था कोई नहीं था. फॉर दिस वी आर अज्यूमिंग, जैसे मैडम ने कहा था, हम लोग मीडिएशन मॉडरेशन का एलिमेंट भी इसमें इंक्लूड करेंगे. So for simplicity, I'm going for four independent variables, one mediating, one dependent, and one moderating. अब देखो सिंपल तरीका ये है कि I simply click here, मैंने इधर क्लिक किया, एक और क्लिक किया, एक और क्लिक किया, एक और क्लिक किया, एक क्लिक, एक क्लिक, एक क्लिक. That's it, as simple as that. Okay? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई टेक्निकल चीज नहीं है. अब यहाँ पे इट्स एडवाइजेबल कि हम लोग वेरिएबल्स के नाम लिखें. मैं राइट क्लिक करूंगा, आई गो टू रीनेम. लेट्स से आपका देयर आर मेनी डिफरेंट वेरिएबल्स, मगर मैं यहां से उठा रहा हूं, देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, तो मैंने सीएसआर कर दिया. राइट क्लिक, रीनेम. दूसरा आ रहा है एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट. तीसरा आ रहा है परफेक्शन. अब यहाँ पे क्वालिटी आ रहा है. मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल इज क्वालिटी, कि इन चीजों से क्वालिटी निकलती है. तो ये सारे हाइपोथेटिकल बना रहा हूँ. यू कैन प्ले विद व्हाटएवर वेरिएबल्स यू हैव. लेट्स से कंपनसेशन है या कंपटीशन है या व्हाटसएवर. कंपटीशन. यहाँ पे आई थिंक कस्टमर लॉयल्टी इज योर मीडिएटिंग वेरिएबल. तो मॉडरेटिंग में मैं देखता हूँ यहाँ पे, लेट्स से एज. मैं मॉडरेटिंग पे ले आता हूँ एज का. अच्छा देखो, अब विजुअली ये मॉडल जरा आगे पीछे हुआ है, सो आई कैन एक्चुअली मेक अ ग्रिड लाइन हियर, और दिस कैन हेल्प मी बेसिकली सेट माय मॉडल्स कि मैं कहाँ का रखना चाह रहा हूँ कि विजुअली जरा डिसेंट लगे. इसके जब आप मॉडल बनेगा तो इट शुड लुक अ बिट नाइस. मॉडरेटिंग में ऊपर ले आता हूँ, मीडिएटिंग में डिपेंडेंट पे. अब जो हमने कॉन्सेप्चुअली काम किया है, we have to link them based on that concepts. Okay, so for that हम ये connect का icon पे click करेंगे. We are assuming all four independent variables have had a relationship with customer loyalty. They basically lead towards customer loyalty, which in return will contribute to the quality of relationship or whatsoever. यहाँ तक किसी को कोई confusion है तो feel free to let me know. Okay, now for simplicity मैंने इस तरह बनाए हैं, but in many cases इस तरह भी होता है कि इस रिलेशनशिप में तो देखो कस्टमर लॉयल्टी टेंड्स टू बिकम द मीडिएटिंग वेरिएबल, कि दिस लीड टुवर्ड्स कस्टमर लॉयल्टी व्हिच इन रिटर्न लीड्स टुवर्ड्स बेटर क्वालिटी इन व्हाटसएवर. अब काफी लोग ये भी करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डायरेक्ट रिलेशनशिप पे चेक करते हैं अपने डिपेंडेंट वेरिएबल से. इट इज समथिंग लाइक दिस. यूं भी आप कर सकते हो. यू हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप मॉडल इफ यू वांट. तो अगर ये आपको ज्यादा कंफ्यूजिंग लगे, लेट मी नो, आई कैन मेक इट सिंपलर. बल्कि एक काम करता हूं, सिंपलर ही बना रहा था. इट माइट बी अ बिट मोर डिफिकल्ट फॉर यू. दिस इज द फर्स्ट मॉडल. मैं भी एज भी हटा रहा हूं. मैं एज हटाऊंगा तो आप देखना ये पूरे का पूरा मॉडल ब्लू हो जाएगा. अच्छा नहीं हुआ, सॉरी. अच्छा, कोई मुझे बता सकता है व्हाट हैव आई मिस्ड हियर? एनी आइडिया? आपने क्या पूछा है?
मैंने यहाँ पे अभी क्या मिस किया है, ये मॉडल ब्लू क्यों नहीं हुआ है? दिस इज शोइंग कि कोई मसला है, कोई एरर है। The thing which I've missed is कि I haven't told the software कौन से आइटम्स कौन से वेरिएबल के हैं। तो सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि CSR के जो क्वेश्चंस थे वो कौन से हैं। तो देखो ये लेफ्ट पे इंडिकेटर्स आ रहे हैं, दीस आर द आइटम्स, दीस आर द क्वेश्चंस जो हमारे एक्सेल फाइल में थे। तो आई क्लिक हियर, तो मैंने इस जो कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी के मैंने आइटम सारे ड्रैग करके इस पर ड्रॉप कर दिए, ऑटोमेटिकली इसका कलर चेंज हो गया। तो एट्रीब्यूट के जो आइटम्स थे मैंने हाईलाइट करके इधर डाल दिए। उसके बाद परफेक्शन के थे अगर, मैंने इसमें डाल दिए। क्वालिटी के थे मैंने इस पे डाल दिए। लाइक कंपटीशन मैंने इसमें डाल दिए। कस्टमर लॉयल्टी कि मैंने इसमें डाल दिए। अब मैंने एज हटाया था क्योंकि पहले मैं आपको नॉर्मल दिखा दूंगा, फिर मैं मॉडरेटिंग इम्पैक्ट दिखा दूंगा। अब दिस टेंड्स टू बी अ बिट मोर जम्बल्ड अप। तो जब जम्बल्ड अप हो रहा है, आप अगर ये राइट पे बॉटम पे देखो, वी कैन अरेंज वेयर दिस आइटम्स आर विजिबल। ये अभी जो शो कर रहे हैं कि दीस आर द आइटम्स या क्वेश्चंस व्हिच आर मेकिंग अप दीस वेरिएबल्स। तो इसको मैं अगर, जी मैम आप कुछ पूछ रही हैं? जी मैं ये पूछ रही हूँ, जब हम ये क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपकी जहाँ इंडिकेटर्स लिखा है, इस स्क्रॉल बार को जरा ऊपर करें आप, ऊपर करें। जी मैम। हाँ, ये आप 8 क्यों छोड़ा, 12 क्यों छोड़ा? मैम 8 इज नॉट द आइटम जो मैंने लेना है। देखिए आइटम 1 था, लेट से हमने एक वेरिएबल के 5 क्वेश्चंस पूछे, तो ये वो 8 वाला भी CSR ग्लोबल, आई थॉट कि ये है। नहीं अच्छा मैम, ये ये 5 डिफरेंट। जी जी बिल्कुल, अच्छा ठीक है, अभी अलग आइटम्स इसलिए हमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर मैं इस वेरिएबल पे क्लिक करता हूं तो आप ये देखें राइट पे जो ऑप्शंस हैं ये हाईलाइट हो रहे हैं। सो आई कैन चेंज वेयर दिस आइटम्स कैन बी शोन। मैंने इस पे क्लिक किया तो आइटम ऊपर हो गया, इस पे क्लिक किया तो आइटम्स राइट पे शो हो गए। सिंप्लिसिटी टू हैव अ मोर क्लीनर विजन हियर, दैट्स इट। अच्छा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि हम घंटे के अंदर वर्कशॉप कंप्लीट कर लें, तो आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट के वो मैं मॉडरेटिंग फैक्टर भी डाल ही देता हूं इसमें। एक सेकंड। अच्छा, नॉर्मली देखिए मॉडरेटिंग फैक्टर जब होता है, अब क्योंकि मैंने एक नया इसमें वेरिएबल डाला है जिसको मैंने डिटेल्स नहीं डाली हुई, तो ये पूरा मॉडल रेड हो गया। इसका मतलब है दिस मॉडल इज नॉट फिट फॉर रनिंग जब तक मैं रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं करूंगा। तो आई कम डाउन, मैं एज का वेरिएबल उठा के इसमें आइटम डाल देता हूं। क्योंकि एज इज अ नॉमिनल वेरिएबल, मुझे सिर्फ एक ग्रुपिंग वेरिएबल चाहिए जिसमें एज लिखी हुई है, दैट्स इट। और ये जो डेटा होगा ये टाइम सीरीज में आ रहा होगा, दिस इज एक्चुअल डेटा। तो इसीलिए आई हैव ओनली वन आइटम है, आई डोंट हैव मल्टीपल आइटम्स। मैं इसको रीनेम पे जाऊंगा, आई सिंपली राइट एज। बाकी सॉरी नॉमिनल नहीं होगा, दिस इज एक्चुअली वो इंटरवल बेस्ड वो है। अच्छा देखो, नॉर्मली मीडिएटिंग वेरिएबल इज अ वेरिएबल व्हिच इज इन बिटवीन रिलेशनशिप के इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप या इंपैक्ट आ रहा होता है मीडिएटिंग पे, एंड दैट इंपैक्ट फर्दर goes on towards the dependent variable. On the other hand, the moderating variable basically influences the relationship between two variables. तो अगर मैं देखूं कि कस्टमर लॉयल्टी का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है क्वालिटी के ऊपर, तो जो एज है इसका जो रिलेशनशिप आ रहा होगा, इसकी लाइन या एक एरो आ रहा होगा इस तरह, इस एरिया के बीच में इनकी रिलेशनशिप आ रही होगी, यूं एरो आ रहा होगा यहाँ पे। एरो इस पे नहीं आ रहा होगा, एरो इस पे नहीं आ रहा होगा, इट विल बी बिटवीन द पाथ या लाइन के ऊपर। अब दिस इज हाउ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क विल बी डिजाइंड। बट पीएलएस का प्रॉब्लम ये है कि पीएलएस के अंदर हमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी पड़ती है। तो आई विल हैव टू लिंक दिस एज वेरिएबल टू द डिपेंडेंट वेरिएबल जिसके साथ मैं रिलेशनशिप चेक कर रहा हूं। तो प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको अज्यूम करें कि ये जो एरो है इट इज एक्चुअली कमिंग टुवर्ड्स दिस लाइन। ये एरो इधर आ रहा है, इट इज नॉट कमिंग हियर, बट ये पीएलएस की एक लिमिट है जो हमें इस तरह कनेक्ट करना पड़ता है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। अच्छा, एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि हम जब एनालिसिस, जी जी बोले। आपने जैसे बोला कि पीएलएस की रिक्वायरमेंट है कि आपने जो है क्वालिटी की तरफ आप एरो लेके गए हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ, यस।
हाँ, तो हम सेंटर में पीएलएस की रिक्वायरमेंट है कि हम सेंटर में या जो हम कस्टमर लॉयल्टी पे नहीं ला सकते। नहीं, देखो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, आपकी जो मॉडरेशन जो होती है, इट इज ऑलवेज बिटवीन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। सही है? तो इन दिस केस आपका जो एज की जो, अगर इस कॉन्सेप्ट में आप बात करोगे, इसका जो एरो आना चाहिए, इट शुड बी बिटवीन द लाइन। ये कस्टमर लॉयल्टी की जो लाइन आ रही है टुवर्ड्स क्वालिटी, इसके बीच में आएगी यूं। मेरा माउस नजर आ रहा है हम लोग को? जी। हाँ, ये इस तरह आएगी नॉर्मली, बट एनालिसिस रन करने के लिए हमें इसको इधर कनेक्ट करनी पड़ती है। तो आप लोग जब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाओगे अपना, उसमें आपकी लाइन यहाँ पे शो हो रही होगी, नीचे शो हो रही होगी एरो, बट ये मॉडल के अंदर यहाँ पे आ रही होगी। ठीक है सर, थैंक यू। अभी भी कंफ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क। ओके, दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू गाइस, सो यू कैन आस्क मी एज मच एज यू वांट। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखें, क्योंकि ये चीज आप लोग के लिए नई है, फील फ्री टू आस्क मी एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट। सॉफ्टवेयर पे ही मैं भी काम करूं, मैं टेक्निक्स पे नहीं जाऊंगा। आई नो इट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड देयर। तो जहां क्वेश्चन पूछना है, सिंपली आप क्वेश्चन पूछो, आई विल आंसर दैट, सो डोंट हेजिटेट। मैं फाइनली रिपीट कर रहा हूं, जब हम मॉडरेशन की बात करते हैं, मॉडरेशन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में जब बनती है, द एरो फ्रॉम द मॉडरेटिंग वेरिएबल ऑलवेज फेसेस टुवर्ड्स द लाइन ऑफ द रिलेशनशिप। हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जब बनाएंगे, हमारी इसी तरह लाइन यहां पे आ रही होगी, बिटवीन दिस लाइन। बट पीएलएस में क्योंकि हमने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी, हमें यू बनानी पड़ेगी। पीएलएस इज अ सॉफ्टवेयर लाइक एसपीएसएस, तो ये हमें बहुत सारा आउटपुट दे रहा होगा, जिसमें से हमें सारा आउटपुट यूज नहीं करना। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके 6 हाइपोथेसिस बने होंगे। लेट्स से सीएसआर का इम्पैक्ट कस्टमर लॉयल्टी पे, एट्रीब्यूट का इम्पैक्ट इस पे, परफेक्शन का इम्पैक्ट इस पे, कंपटीशन का इम्पैक्ट इस पे, और लेट्स से परफेक्शन का मीडिएटिंग रिलेशनशिप विद क्वालिटी, के परफेक्शन का इम्पैक्ट कस्टमर लॉयल्टी पे आ रहा है, विच इज मीडिएटिंग द रिलेशनशिप टुवर्ड्स क्वालिटी। मगर जो आउटपुट आएगा वो बहुत सारे और होंगे। वो सीएसआर का कस्टमर के साथ क्वालिटी में आ रहा होगा, एट्रीब्यूट का कस्टमर लॉयल्टी में आ रहा होगा, परफेक्शन का इसके साथ आ रहा होगा, कंपटीशन का कस्टमर लॉयल्टी का क्वालिटी के साथ आ रहा होगा। तो इट डज नॉट मीन कि यू विल हैव टू इंटरप्रेट एवरी सिंगल आउटपुट। तो वहां पे आपको अपना क्वालिटेटिव या सब्जेक्टिव नॉलेज यूज करके इंटरप्रेट करना होगा। एसपीएसएस में भी ये होता है, यू हैव अ लॉट ऑफ टेबल्स, यू इंटरप्रेट द रेलेवेंट टेबल्स। अभी जो मैंने टेबल बनाए हैं, प्लीज लेट मी नो आपको ये समझ आई है नहीं आई, क्योंकि फिर मैंने मॉडरेटिंग की तरफ जाना है। मॉडरेटिंग इज स्लाइटली बिट मोर एडवांस देन दिस। यस सर, आगे समझ। अच्छा, अभी मैं जो एनालिसिस रन करूंगा, इसके अंदर एज का रिलेशनशिप भी शो करेगा क्वालिटी के साथ। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इसको हटा रहा हूं। हम जाएंगे कैलकुलेट के ऊपर। वी विल गो टू पीएलएस एल्गोरिथम। वी विल सिंपली क्लिक दिस। वी हैव different information here. They have a lot of reasons for this. हम iteration change कर सकते हैं, criteria change कर सकते हैं। For simplicity, we are not touching anything. हम simply नीचे आएंगे start calculation की तरफ, and we will simply click start calculation. अब देखो, एक नया पेज खुल गया, इसको आप इग्नोर मारो, इट्स समथिंग डिफरेंट फॉर यू। अगर ऊपर आते हो, ये पीछे वही पेजेस खुले हैं जिस पर भी हम काम कर रहे थे। हमने जब पीएलएस का डेटा इंपोर्ट किया था, तो वी हैड समथिंग लाइक दिस। हमने जो शीट बनाई हुई थी, जो पाथ मॉडल बनाया था, वो इधर था, ये रहा। आई क्लिक हियर, वी आर हियर बैक। तो हम सबसे पहले इस शीट को इंटरप्रेट नहीं करेंगे, वी विल कम बैक टू दिस अब पाथ मॉडल। अब आप देखोगे देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हियर, थिंग्स चेंज हो गई हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई है। तो अभी अगेन, क्योंकि वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द सॉफ्टवेयर एंड नॉट द एक्चुअल टेक्निक, हम काफी चीजों को टच नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ रही हैं, दीस आर सम लोडिंग तो नहीं बोलूंगा, ये कुछ रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में आते हैं, वी विल टच दिस लेटर ऑन। इसको अभी आप इग्नोर मारो। जो अभी हमारे काम की चीज यहाँ पे आ रही है, आर दीस वैल्यूज, जो इनके बीच में आ रही हैं और इनके बीच में आ रही हैं। अगर आप लोगों ने रिग्रेशन पढ़ा होगा, तो यू नो व्हाट पाथ कोएफिशिएंट्स आर। नहीं भी पता तो यू कैन आस्क योर सुपरवाइजर, एंड जनरली एक बेसिक चीज मैं आपको बता दूंगा। द पाथ कोएफिशिएंट बेसिकली शोज कि आपका जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स योर डिपेंडेंट वेरिएबल, या इस कॉन्टेक्स्ट में जो डिपेंडेंट वेरिएबल बना हुआ है यहाँ पे।
इस मॉडल के अंदर this customer loyalty is being treated as a dependent variable at least in terms of these 5 variables. तो जो कस्टमर रिलेशनशिप है या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सॉरी, ये बहुत कम, अगर आप सब्जेक्टिवली देखो तो काफी कम रिलेशनशिप आ रही है, इसकी इम्पैक्ट आ रहा है इसके ऊपर. सिमिलरली जो एटीट्यूड है उसका भी बड़ा कम आ रहा है. इन कंपैरिजन जो परफेक्शन और कंपटीशन का रिलेटिवली अच्छा कंट्रीब्यूशन आ रहा है. तो इट रफली देखो 0.21 आ रहा है या 0.22 आ रहा है. इन कंपैरिजन ये तो लेस देन 5% या लेस देन लाइक 0.14 आ रहा है. तो कंपैरेटिवली perfection and competition have a higher contribution towards your customer loyalty. और ये जो बीच में वैल्यू आ रही है, this is basically R square. regression में आपने किया होगा ना. तो what does the R square shows? It shows the variation in the independent variable which are explained by the variability in the dependent variable. सिंपल भाषा के अंदर कि कितना कंट्रीब्यूशन पड़ रहा है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर. तो दैट इज द बेसिक एक्सप्लेनेशन है. अब यही चीज फर्दर आप आते हो तो अब मीडिएटिंग रिलेशनशिप ये शो नहीं करेगा, बट ये बता रहे हैं कि हमारे जो कस्टमर लॉयल्टी का जो वेरिएबल आ रहा है इसका कंट्रीब्यूशन कितना पड़ रहा है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर. जो मीडिएटिंग रिलेशनशिप है अभी हम लोग वो रिपोर्ट के अंदर जाकर चेक करेंगे. इस फिगर पे किसी को कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू आस्क मी. अगेन इधर इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है. इधर हम लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर रनिंग की बात कर रहा हूं कि सॉफ्टवेयर हमने रन किया, हमारे पास वैल्यूज आ गई, ये आपकी बीटा कोएफिशिएंट्स आ रही है, ये आर स्क्वायर आ रहा है. दैट इज दिस. इंटरप्रिटेशन आपकी सुपरवाइजर भी हेल्प कर सकती है, मैं भी आपको हेल्प कर सकता हूं. अभी वर्कशॉप का जो काम है इट इज बेसिकली टू शो यू हाउ टू यूज दिस सॉफ्टवेयर. अब इससे अगर हमने डिटेल्ड रिपोर्ट चेक करनी है, क्योंकि दिस इज ओनली अ स्नैपशॉट, तो आई वुड ऑलवेज एडवाइस यू इसका आप स्नैपशॉट सेव भी कर सकते हो. गो टू फाइल एंड गो टू एक्सपोर्ट एज अ इमेज टू फाइल. तो इसका एडवांटेज ये होगा कि अपने थीसिस में या रिपोर्ट में आप डाल भी सकती हो कि देखो मेरा मॉडल ये था जिसमें से मेरे कुछ इमेज या कुछ फिगर्स ये आ रहे थे. सेकेंडली वी विल गो टू रिपोर्ट. ये रिपोर्ट खुली हुई है यहाँ पे. देखो दिस इज शोइंग अस द सेम थिंग. जो पाथ कोएफिशिएंट्स की हम लोग बात कर रहे थे ये वही चीज शो कर रहा है. अब देखो कस्टमर लॉयल्टी वाज द मिडिल वेरिएबल व्हिच वाज बीइंग ट्रीटेड एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल इन दैट रिलेशनशिप. तो सारे के सारे जो यहाँ पे पाथ कोएफिशिएंट्स दिखा रहे हैं वो आ रहे हैं कस्टमर लॉयल्टी पे. व्हाई? ऑल द एरोज आर कमिंग टुवर्ड्स कस्टमर लॉयल्टी. जितने एरोज किसी वेरिएबल की तरफ आ रहे होते हैं उतनी वैल्यूज जनरेट हो रही होती हैं इसकी. देखो CSR का आ रहे हैं 0.14, राइट? तो इसमें भी आप आओगे तो CSR का देखो 0.14 आ रहा है. वही जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी इस पेज के ऊपर, इट इज बीइंग जनरेटेड न्यूमेरिकली ऑन दिस रिपोर्ट. तो ये कोई डिफरेंट चीज नहीं है. दे आर सिंपल डिफरेंट टू पेजेस. एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं और एक बेसिकली रिपोर्ट फॉर्म में शो कर रहा है. नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हियर. नीचे अगर आप आके देखोगे तो वी हैव द पाथ कोएफिशिएंट जो एक्चुअली खुला हुआ है. अब देखो आपका जो ये वेरिएबल आ रहा है कस्टमर लॉयल्टी, यहाँ से सिर्फ एक एरो आ रहे हैं टुवर्ड्स क्वालिटी. तो इसका मतलब है सिर्फ एक पाथ कोएफिशिएंट आ रहा होगा व्हिच इज बिटवीन कस्टमर लॉयल्टी टुवर्ड्स क्वालिटी. तो एक कोएफिशिएंट आ रहा है. तो दिस इज रिलेटिवली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. अब देखो दे आर, अब असल चीज जो पीएलएस का मजा आता है, इट इज वी आर एबल टू गो फॉर मोर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स. SPSS मॉडरेटिंग मीडिएटिंग रिलेशनशिप इन प्योरिटी नहीं चेक करता, वो हम कंट्रोल्ड रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं, एक अलग चीज है. पीएलएस का फायदा ये है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टोटल इफेक्ट सब चीजें एक साथ चेक करके दे सकते हैं. वो बता देगा आपको कि इसका इस पे रिलेशनशिप क्या आ रहा है, इसका इसके थ्रू क्या रिलेशनशिप आ रहा है, इसका क्या रिलेशनशिप आ रहा है, इसका इसमें क्या आ रहा है, इसका इसके थ्रू क्या आ रहा है. अगर यहाँ पे एक और वेरिएबल होगा इसका इसके थ्रू ऑन दिस विद दिस क्या आ रहा है, तो वो सब चीजें कंपेयर कर सकता है. तो इट इज रिलेटिवली इजियर एंड इट्स सिंपलर टू डू. अगर हम मैनुअली करेंगे वी हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ द बोथ बीटास. तो हमें निकालना पड़ेगा भाई इसका इंपैक्ट इस पे आ रहा है, इसका इंपैक्ट इस पे आ रहा है, तो इनकी जो मीडिएटिंग बीटा वैल्यू आएगी इट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दीस टू वैल्यूज. तो ये पीरियड हमें सब निकाल के दे रहा होगा. अच्छा, आई थिंक द मीटिंग विल एंड इन लेस देन 1 मिनट. तो हम दोबारा इसी पेज पे दोबारा ज्वाइन कर लेंगे. समबडी हैड अ क्वेश्चन? जी बोले. यस सर. प्लीज बोलो. सर मैं ये कह रही थी CSR है, CSR का जो वो था कस्टमर लॉयल्टी से थ्रू क्वालिटी, इन तीनों का एक साथ जो है कोई रिलेशन अभी नहीं बताया ना आप. हाँ मैं भी चेक करेंगे. वही दिखाऊंगा अभी. वो एक टेबल आ रहा है इसके नीचे, मैं उसी में दिखा रहा हूँ अभी. देखो ये आता है इनडायरेक्ट इफेक्ट, फिर टोटल इफेक्ट. पाथ कोएफिशिएंट में एक जनरल पिक्चर दे रहा है ना.
फिर हम आते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट में। अब इनडायरेक्ट इफेक्ट बेसिकली हमें शो कर रहे हैं कि इसका इसके थ्रू कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है इसके ऊपर, इसका इसके थ्रू कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है इसके ऊपर, इसका इसके थ्रू कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है